नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार साहब के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं हमेशा कहां है? आपके साथ। जी हाँ, हमारे दर्शकों के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, दुनिया के साथ है, इंसानियत के साथ है और हमेशा सच के साथ है। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, irrespective of whatever anybody might say about Mr. Narendra Modi, but the fact remains that Mr. Modi remains the first Prime Minister ever actually to talk about commemorating and remembering all those people who died during partition. Yes, the horrors of partition. That's what he said. If people can remember Holocaust Day, if people can commemorate Holocaust Day, you have to remember Partition Day. And what better partition day than the day of creation of Pakistan? After all, why did partition take place? Why did so many people get killed? Only because Pakistan had to be made. Irrespective of all the mistakes that were made, irrespective of all the administrative errors that took place, irrespective of all the deliberate errors made by the British with intentions which have only now become clear. They wanted Pakistan to be their puppet state against the expanding Soviet Union. The fact is, the horrors of partition are still being lived by us. The unfinished business of partition is still there with us. 1947, the maximum number of people killed in the shortest possible time. The brutality, the number of people killed, the number of women raped and maimed, the children beheaded. Pradeep ji has no equal. Sir, I think even Redcliffe, Mr. Redcliffe, he describes this, how he was carrying an aircraft and flying over the particular place, the boundaries that he created. And he could see how people were fighting with each other, people crossing over the border that he created, the line that he created. And during the crossing, you could see violence from the aircraft that was flying over it. Sir, Cyril Radcliffe refused to accept a fee. In fact, he refused to accept his fee and went into retirement. He didn't want to have anything to do with what he had created. And he said himself that I don't want to listen to this. I don't want to talk about this. Modi sir has ignited the entire debate today about the horrors of partition. Well, now he's probably put a question mark. He says, I salute the survivors and the people who have been affected and survived. So but my also family, the victims of the horror. My family, millions of others like us, on both sides, by the way, had to undergo the horrors of partition because of the ambitions, as they say, of two men. One, Muhammad Ali Jinnah, because he wanted Pakistan. The other, Jawaharlal Nehru, because he wanted to be Prime Minister of an independent India. Well, whatever be the truth, the fact is, slowly and steadily, the truth will come out. The fact remains, Lord Louis Mountbatten announced 15th of August as Independence Day. He said, we are leaving. And he announced 15th of August because the Japanese surrender had taken place in 1945 on the 15th of August. And he was the first Sea Lord commanding the forces in the Pacific. Now the point is, we suffered because of the pusillanimity of the British, and that should never be forgotten. Let's be very clear. In fact, that Sarila's book, The Great Game, on which Gurinder Chadda based her film Viceroy's House, brings it out very eloquently as to how even Mountbatten was fooled by the British bureaucrats. They wanted partition. They did not want a strong united India. A strong united India today would have been among the great powers of the world. It would not have had to wait for a Modi to come along and aspire to become a superpower, what we are doing right now. But a partition was already in the cards, sir, because the certain section of the Muslim population wanted Pakistan. And that was the kind. In fact, after the death of Iqbal, it was the Muslim outfit from probably the Pakistan Punjab, which is now, they all got together and bought back Muhammad Ali Jinnah
who was actually in London. He was in London. You have to come and you have to start the fight for creation of Pakistan. And the best part is, the irony is, the Muslim League of Muhammad Ali Jinnah had not won a single election in Punjab till then. It was always a unionist party of Sir Sikandar Hayat Khan, yes, along with the Congress. And number two, which is the most important thing which people forget, there was a referendum which was held. They say 90% of the Muslims voted for Pakistan. Absolute balderdash. Do you know who were the people who were allowed to vote? Those who paid income tax or who owned properties. Now, even now, more than we have just about 7 to 8% of the population of India paying income tax. At that time, can you imagine what the figure was? And who were the people who actually voted for Pakistan? All the bloody landlords and others who, by the way, are still here, and their descendants are still here. Those guys who voted for Pakistan are still here. It's terrible, absolutely terrible. Right at the moment with us from the BJP, we have our old friend Mr. Rajiv Pandey. Rajiv Pandey sahab, namaskar. Namaskar, Jai Hind. Jai Hind sir, Jai Hind, Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Vande Mataram. भारत माता की जय। तो सर, इंडिया वर्सेस भारत में मुझे लग रहा है भारत की जीत हो रही है। राजीव पांडे साहब, देखिए राजीव जी, सबसे पहले जो आप अभी विभाजन विभीषिका दिन के बारे में जो बात कर रहे थे, उस पर पहले मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूं, अगर आप प्लीज गो अहेड सर, वुड लव इट, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज। देखिए राजीव जी, आपने जो बात कही और नाम्बियार साहब ने जो बात कही, उसके साथ एक और बात है कि उस समय माना जाता है कि करीब 20 से 30 लाख लोगों की हत्या हुई, और जो औरतों के साथ जो गलत काम हुआ वो तो उसकी कोई संख्या ऐसी हमारे पास नहीं है, और करीब 2 करोड़ लोग इधर से उधर हुए जी। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगर आप आगे जा करके देखेंगे तो पाकिस्तान में उस समय 27% हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे। उसमें से 1.5-2 करोड़ लोग तो आ गए, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ? ये जो विभाजन विभीषिका दिन जो है, उसका इम्पैक्ट आज तक चल रहा है। आज आप देखिए कि अहमदिया, छोड़िए हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और बौद्ध और जैन की बात, जो अहमदिया मुसलमान है उसे जिंदा जलाया जाता है पाकिस्तान में। आज जो वहां पर हिंदू तो बचे ही नहीं, सिंध में थोड़े बहुत हैं जो अभी भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्रिश्चियनों के साथ किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार है कि ब्लेस्फेमी का लॉ लगा करके फांसी की सजा सुना देते हैं। तो जो घटना 14 अगस्त 1947 को हुई, वो आज भी उसका जो उसका जो इफेक्ट है ना, वो आज भी है। और जो बच्चा आज पाकिस्तान की या बांग्लादेश की धरती पर पैदा हो रहा है, वो आज भी उसको झेल रहा है, उस दंश को। भारत में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या अंतर है अगर आप देखें तो, उस समय पाकिस्तान, जो भारत से जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, वो वहां चले गए। वहां उनकी आबादी का प्रतिशत देखिए, भारत में 8% बचे थे, आज 16% है। 14% है और वो बढ़ गए 16 है। 8 से 16 यानी उनका परसेंटेज आज 8 से 16 हो चुके हैं। पाकिस्तान में 27 से 0.5% केवल है, वो भी सिंध में। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जो उसको आप वेस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं जी। इस पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन थी हिंदू की, वो ड्विंडल होकर के आज 7% पे है, जो करीब 20% के करीब थी। मेरा क्या कहना है कि जो दंश है ना, मतलब इतना दुख का विषय है ये, आज जब हम विभाजन विभीषिका दिन को याद करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर आदमी ने ये काम किया, अपने स्वार्थ के लिए। आपको भी पता है कि जिन्ना कितना दिन सरवाइव किया जी। 2 देश बना दिए क्योंकि 2 प्रधानमंत्री बनने थे, एक मुस्लिम लीग को चाहिए था, एक नेहरू जी को चाहिए था। और जो सबसे बड़ी बात है, बस 30 सेकंड में इस विषय पर मैं अपनी बात खत्म कर सर, बोलिए, वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव टाइम सर। जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने एक बात उठाई, आप दोनों ने अपने स्टेटमेंट पे, किन लोगों ने वोट दिया था? क्या बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान मांगा था? नो। आज भी सिंधु देश के लोग हैं ना, वही मैं कह रहा हूं, लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि हमें तो, उन्होंने तो, फाटा वालों ने तो लेटर लिख दिया था जी कि हमको इंडिया में एक्सीड करना है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं थी, जिसके कारण से हम उनको अपने देश में शामिल कर पाए। सर,
Sir, the Khan of Kalat had Yes, written an yes. official letter to Pandit Nehru यस that we want to be part of India. यस क्या सिंध के लोगों ने कहा जी। या पंजाब के लोगों ने कहा? मैं आपको No, बताता हूं, sir. पूरी पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो जहर है ना, उसके लिए दो जगह जिम्मेवार है। एक हमारे भारत में है, जहां से वो आइडियोलॉजी निकलती है। जी। तालिबान की आइडियोलॉजी किसकी आइडियोलॉजी है? आईएसआईएस की आइडियोलॉजी किसकी आइडियोलॉजी है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये लोग जहां से वोटिंग हुआ वो अभी भारत में है। ये पूरा का पूरा जो वोटिंग है ना, उत्तर प्रदेश। लियाकत अली खान कहां से था? ये कहां से? ये सारे जो अताताई हमारे हरियाणा से सर। हाँ, हरियाणा से आपके उत्तर प्रदेश देवबंद। देखिए, पूरी दुनिया में आतंकवाद की दो जननी है, दो केंद्र है, देवबंद और अल अजहर यूनिवर्सिटी। वो विषयांतर हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो विभाजन हुआ उसमें दो तरीके थे। एक तरीके थे जिन लोगों ने कहा कि हम भारत में रह करके यहाँ की स्थिति को खराब करके हम कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा ने कहा नहीं, हम पाकिस्तान बना करके फिर हमला करेंगे। मेरा ये कहना है, उनको आज दुख हो रहा होगा कि भारत हमारी सारी संस्कृति और जो हमारे सारे लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारत आज भी है। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और एक बात और बता दूं कि आज आप जाकर के एक रिसर्च करिए कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपके इतने स्टीम्ड चैनल पे बताना नहीं चाहता कि चाइना में किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग। गधे का सर, डोंकी नहीं, ओह गधा तो नंबर में जी। मैं बोलना नहीं चाहता। लड़कियों का, लड़कियों। हाँ, मैं आप जाके देखिए। सर आप बोलिए ना, आपको बोलने से किसने रोका? वी डोंट स्टॉप पीपल। यस, ये इतने रिपोर्ट है कि किस प्रकार से हर साल ये काम ये कर रहे हैं जी। मतलब इनकी हालत यहां तक चली गई। इन्होंने कहा कि हम सिखों को, जैनों को, बौद्धिस्टों को, अहमदिया को, इस्माइली को, शिया को, इवन मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में। इस्माइली, शिया, अहमदिया, सबसे ज्यादा शियाओं पर का कत्लेआम हुआ। अगर आप याद करिए, 5-7 साल पहले डेली ब्लास्ट होते थे। तो सर हर फ्राइडे को बलूचिस्तान में शिया मस्जिद में हमेशा बम ब्लास्ट होता था। तो राजीव जी मैं एक ही बात, और नामबियार साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सबको यूनाइट रहना है। भारत के हर एक व्यक्ति को इस दिन को याद करना है, और हमारे बीच में जो विभेद पैदा करने वाले लोग हैं, हमको उनके खिलाफ, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, रीजन के नाम पर हो, हमें उसके खिलाफ काम करना है। और इस दिन को याद रख करके, और जो हमारे जो देश के आज़ादी के जो मतवाले थे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद से लेकर के भगत सिंह जी से, राजगुरु से लेकर के सारे, सबको प्रणाम करते हुए कि आपकी वजह से आज हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और विभाजन के जिस कारणों से हुआ, उस कारणों को ध्यान से समझना है। पांडे जी, आपने पांडे जी इसको कैंपेन तो बना ही दिया, कैंपेन बना दिया। मोदी साहब ने खुद ऐलान कर दिया कि ही टॉक्ड अबाउट हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। मोदी साहब ने कहा, ही सेज आई सैल्यूट द पीपल, द सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल, जो अफेक्टेड थे और सर्वाइवर्स, दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं। मोदी साहब ने इसको ऑलरेडी इशू बना दिया। Probably he is trying to highlight it is one of the important wrongs of history, उनका कहना। और सोशल मीडिया और बीजेपी तो प्रश्न पूछना, किसने खींची लकीरें, किसने नदियां बहाई, खून के लहू की नदियां बहाई, यानी आपका आंगन, हमारा जो आंगन था, आंगन को सरहद बना दिया। Sir, not only that, Pradeep ji, one second. BJP campaign is already on, sir. So this is something personal. Yes. This is something personal which I would like to state here. पांडे साहब जरा सुनिए ध्यान से सुनिए सर। जी सर, पार्टीशन हुआ, the evacuee property committee was appointed, the convener of the evacuee property chairman was appointed. सर आपको मालूम है, यहां से छोड़ करके जो चांदनी चौक की, आपको पता नहीं आप दिल्ली के हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। दिल्ली में रहा हूं सर। दिल्ली में चांदनी चौक में, दरियागंज में, बाकी हर जगह पे जो बड़ी बड़ी मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी कोठियां थी, जैसे नहर वाली कोठी भी है, नहर वाली हवेली भी है, वेरी वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मिस्टर मुशर्रफ वाज बोर्न ओवर देयर। उनकी भी फैमिली यहीं से गई है वहाँ पे। सर आपको मालूम है, वहाँ के बहुत लोग वहाँ पर गए, और उसके बाद जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने यहाँ पर कस्टोडियन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो थे, उन्होंने फिर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट पीपल ओन्ड इन पाकिस्तान, that property was given to Hindu and Sikh refugees who came from Pakistan to settle in Delhi.
सर उसके बाद क्या हुआ, सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत मुस्लिम फैमिली जो वहां गई उनको तब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार हम लोग कहां आ गए, हम तो जन्नत छोड़ करके यहां कहां आ गए, गधों के देश में आ गए। दे केम बैक। डू यू नो समथिंग, द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल, द मोस्ट रिमार्केबल प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, he deemed that all those people who had been allotted that evacuee property should be forced to vacate that, they should go into relief camps and the property should be handed back to the Muslims who had gone to Pakistan. I remember Mr. Kishlu resigned. He resigned on that. सर आप मुझे बताइए, ये मतलब ये सब चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए क्या? Part of my family was a victim of that. That's why I am saying it's very, very personal. सर एक और चीज, छोटी सी बात है, मदन लाल पाहवा साहब, मदन लाल पाहवा वॉज वन ऑफ द अक्यूज्ड इन दी महात्मा गांधी असैसिनेशन केस, आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है सर। हरिद्वार में, सॉरी इलाहाबाद में, पार्टीशन के बाद इलाहाबाद में पंडित जी कुछ रेफ्यूजी से मिल रहे थे, साथ में इंदिरा जी भी थी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मदन लाल पाहवा केम इन फ्रंट ऑफ पंडित जी और उन्होंने इंदिरा जी को आंख मारी। पंडित जी ने अपनी लाठी उठाई और उसको पीटना शुरू कर दिया। तो मदन लाल पाहवा ने यह कहा, आपको बुरा लगा ना सर, मैंने तो अपनी बेटी को मेरे सामने रेप होते हुए देखा है और कटते हुए देखा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा यह कहना है सर, आज की तारीख में ऑल दीज ट्रूथ्स मस्ट कम आउट। द ट्रूथ हैज ए वेरी एनेस्थेटाइजिंग एबिलिटी, द ट्रूथ क्लीन्स एवरीथिंग। सीधी बात है, यू कैनॉट shove anything under the carpet. सच जो है सर, उसमें जो क्लिनजिंग एबिलिटी होती है और किसी चीज में नहीं होती। The truth of the partition must come out. Why 1947? Why 15th of August? 15 अगस्त को, क्योंकि 1945 में जापान ने सरेंडर किया था लॉर्ड लुई माउंटबैटन को, तो लॉर्ड माउंटबैटन साहब ने कहा 15 अगस्त को हम लोग जा रहे हैं। अरे वहां पर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को समझाया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। वी हैव टू टॉक टू पीपल। आप भी मान गए सर, दैट वाज अ क्राइम, द बिगेस्ट क्राइम दैट वाज एवर कमिटेड इन हिस्ट्री। राजीव पांडे साहब। राजीव जी, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो जी, जितने व्यूअर हैं वो इस विषय में और डीप जाएंगे जी। और जो नामबियार साहब कह रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, नरेंद्र भाई मोदी ने, जी, कि हमको इसके बारे में, देखिए जो आदमी, कोई भी व्यक्ति जो अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है ना, वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट करने के लिए कंडेम होता है। देयर इज अ सेइंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर हिस्ट्री, यू आर बाउंड टू कमिट द सेम मिस्टेक। तो आज के डेट में जो गलतियां हुई हैं, वो हमारे हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए, जिससे कि वो गलती हम दोबारा नहीं करें। जी। और मैं एक बात बताता हूं कि जब भी सेल्फ राष्ट्र से ऊपर हो जाएगा, भगवान कृष्ण गीता में उन्होंने कहा है कि सेल्फ जो है ना, वो बहुत डेंजरस है। मैं आपको 10 सेकंड में इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूं कि जब भीष्म पर्व में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई ले लो भीष्म पितामह जी से कुछ ज्ञान, तो उन्होंने एक बात कही कि किसी भी आदमी को जब मोह माया है, तो उन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे भी दुर्योधन में क्या गलती थी, उसको अहंकार था। धृतराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम, उसको पुत्र मोह था। तो भीष्म पितामह ने कहा मुझे भी पितृमोह था। दुशासन को भातृमोह था। जो मोह है ना, उससे केवल बहुत मतलब गंदगी पैदा होती है, और इसीलिए मोह के कारण से भारत को तोड़ा गया। मोह था इसके पीछे। और उसमें एक लाइन है जो मैं बोल करके इस विषय पर मैं आगे नहीं, ये बहुत ही टची इशू है जो आपने कहा कि आपके परिवार के लोगों, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा। ये मैं राजीव जी चाहता हूं कि आप इसको और भगवान कृष्ण भीष्म पर्व में जो भीष्म पितामह जी ने कहा युधिष्ठिर को कि देखो, जब देश का विभाजन हो एक तरफ और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र हो, तो देश का विभाजन कभी स्वीकार मत करना, धनुष उठा करके कुरुक्षेत्र की ओर चलना। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पर्व में महात्मा भीष्म ने अपने पौत्र युधिष्ठिर को बताया कि अगर देश का विभाजन और युद्ध में से कुछ एक चुनना हो तो युद्ध को चुनना है। युद्ध हुआ फाइनली, आप देखिए, देश का विभाजन चुना, लेकिन उससे रुका क्या युद्ध?
तो ये जो लकीर जो खींच दी गई है भारत के बीच में, ये लकीर से आपने उस समय अंडर द कारपेट आपने रख दिया। लेकिन क्या हुई है स्थिति? क्या हम धीरे एक स्मॉल कन्फ्लिक्ट में नहीं जी रहे हैं? 47 से 4 लड़ाइयां हो चुकी है जी, 1989 से लेकर के मोदी जी के आने तक। अब तो कश्मीर को ठंडा हो गया, अब सारे आतंकवादी जिहादी लोग भाग गए वहां से, पता नहीं चलता कहां गए, बिल में छुप चुके हैं। वापस आएंगे सर वापस आएंगे तो जैसे नाग के फन को कुचल दिया जाता है ना जी, ऐसे ही अब और जल्दी कुचल दिए जाएंगे। लेकिन राजीव पांडे साहब, जो आपने बात कही, एक छोटी सी बात, जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट, दैट्स इट सर। द वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अ जेंटलमैन कॉल्ड सैयद अहमद, इफ यू रिमेंबर। गेस वेयर सैयद अहमद वाज फ्रॉम? 1820 द वहाबी मूवमेंट स्टार्टेड। आपको मालूम है सैयद अहमद साहब कहां के थे? आपने जो देवबंद की बात करी ना, सैयद अहमद साहब रायबरेली के थे। मैं वही कह रहा हूं जी, 1820 में रायबरेली के थे, फिर वो सऊदी अरेबिया गए, वहां पे अल वहाब से मिले, उसके बाद वहाबी मूवमेंट शुरू हुई। पूरी दुनिया में, मैंने कहा ना, पूरी दुनिया में हर आतंकवादी का 2 ही कनेक्शन मिलेगा आपको जी, या तो वो अल अजहर यूनिवर्सिटी के लिटरेचर से प्रभावित होगा, या उत्तर प्रदेश में जहां आजकल बाबा हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शासन है, वहां से मिलेगा जी। आपको। ये सारी जो गतिविधियां हैं पूरी दुनिया में, देखिए हर धर्म में प्रॉब्लम्स रही है, मैं किसी धर्म को ये नहीं कह रहा हूं, हमारे में खुद बहुत सारी बीच में कुरीतियां आ गई। हिंदू धर्म में पहले कोई कुरीतियां नहीं थी, बीच में कुरीतियां आई तो हिंदू धर्म के जो बड़े प्रणेता थे उन्होंने उसके लिए खिलाफ काम किया। अनटचेबिलिटी थी, कास्ट का इशू था। हमारे यहाँ मुगलों टेररिस्टों के आने से हमारे में सती प्रथा आ गई थी। हमारे यहाँ बाल विवाह, विधवा विवाह के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने वो खत्म किया है। हमें आगे जाना है राजीव जी, हमें गधा बेचने और दूसरा एक्सपोर्ट नहीं करने, हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो हम पहले थे एक जमाने में थे, हमको वो बनना है। दुरुस्त बात हमको है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बनना है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो अभी समय चल रहा है ना, भारत का है। और सर यहाँ पे एक सवाल है, इसके पहले प्रदीप जी को पूछना चाह रहे हैं, प्रदीप जी को पूछना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, सॉरी सर। 1947-48 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वी लॉस्ट। गिलगिट बाल्टिस्तान, वी लॉस्ट। 1958 अक्साई चिन, 1962 लद्दाख, sir, and no attempt has been made till today to get these territories back. 1963 के पार्लियामेंट सेशन में, 62 के दिसंबर पार्लियामेंट सेशन में, पंडित नेहरू had supported a unanimous resolution that we will not rest till these territories come back to India. When are we getting them back, sir? बहुत मतलब ये जो सवाल है, देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आप स्थिति देखिए, अब ये तो आप मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ आप मुझे ले आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, बहुत सारा हिस्सा जम्मू का भी पाक के कैप्चर में है, और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है जी, और जो भी एरिया है। देखिए मैं एक बात बताऊं, एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि लग रहा था कि भारत कश्मीर जो है, जो सबसे छोटा हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख था, वो भारत के हाथ से चला जाएगा। लेकिन आज स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि अब इस तरफ की कोई बात नहीं होती। अब जहां भी जिस फोरम पर भी बात होती है, अगर आप देख लीजिए तो वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात होती है, पाक ऑक्युपाइड लद्दाख की बात होती है, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख की बात होती है। और मैं बताता हूं, मैं माननीय नरसिम्हा राव जी को याद करूंगा, उन्होंने लोकसभा में एक रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया था कि हम पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो हमारे कब्जे में नहीं है, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम में थे, उसके लिए पूरा यूनानिमस रिजोल्यूशन। अब आप कहेंगे कब आएगा? देखिए जिस तरीके से आज की सरकार काम कर रही है और पाकिस्तान जिस तरीके से विघटन की दिशा में बढ़ गया है, आपने अभी देखा कि कैसे सिंधु जो नेशनलिस्ट है जी, वो जो भारत में वांटेड आतंकवादी हैं, उनको ठोक रहे हैं। अभी 4 दिन पहले एक ठोक दिया, सरदार करके कोई था, जमात-उद-दावा का सीनियर कमांडर। तो देश में एक वहां से अपने आप में एक आंदोलन चल रहा है। अगर आप गिलगिट बल्तिस्तान में जाकर के देखें, वहां ज्यादा शिया है जी, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, वो भारत के साथ ज्यादा एसिमिलेट करना चाहते हैं। मीरपुर मुजफ्फराबाद में आपको रैलियां हो रही है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है,
तो देखिए सिचुएशन ऐसी आ रही है और भारत की आज जो स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि महादेव की कृपा से हम लोग बहुत जल्द, मैं बताऊं, मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के साथ काम करता था 2011 से लेकर के 19 तक, तो हमें लगता था कि कब ये आर्टिकल 370 जाएगा। हमें नहीं लगा था कि भगवान महादेव की कृपा से ये 19 में चला जाएगा। तो मेरी उस दिन के बाद से अपेक्षा हो गई कि ये भी होगा। अब ये कब होगा, ये तो पांडे जी कब होगा जरूर, कब होगा? जो अगले वर्ष यहाँ पर चुनाव है 2024 में, पाकिस्तान का पार्लियामेंट हैज बीन ये कर दिया, डिसमेंबल, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर वहां पर आया है। अब ये बात है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ये खुद बन सकता था शरीफ जी, तो बट अ न्यू पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड नाउ। ये एक चीज जो आप बोल रहे हो कि ये वातावरण जिस प्रकार से बन रहा है, अगर कुछ घटना घटते हैं अक्साई चिन में या गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाएगा। जो माहौल बन रहा है जिस प्रकार से चल रहा है, और इंडिपेंडेंस डे कल आप बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन जिस प्रकार से चल रहा है कि किसने लहू की नदियां बहाई, हमारे आंगन जो था वो सरहद कैसे बन गए, और फिर दूसरा है कि लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक, ये सब जो एक के बाद जिस प्रकार से चल रहा है ना, उससे कुछ संकेत क्लियर कट है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान में कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो बजाज साहब आप पूछ रहे थे, वातावरण चल रहा था बिकॉज बीजेपी आपने इसको ऑलरेडी इशू बना दिया है। आपने 1947 को इशू बना दिया है। आपने कहा कि ये पार्टीशन वाज प्रॉब्ली अ रॉन्ग हिस्टोरिकल रॉन्ग थिंग, जिस प्रकार से आप हर हिस्टोरिकल रॉन्ग थिंग को आप ठीक कर रहे हो। राम मंदिर को हिस्टोरिकल रॉन्ग था, आपने औरंगजेब के बाद अगर रिवाइव करने वाला वो मोदी जी है। आपने काशी विश्वनाथ हिस्टोरिकल रॉन्ग, औरंगजेब के जमाने, कौन रिवाइव कर रहा है? बीजेपी एंड मोदी। तो एक वातावरण बन रहा है। तो ये अगर कुछ ये जो बोल रहे हैं ना, कुछ नया चीज होगा, इसका जो एक जो चल रहा है बिफोर द विंटर, हाँ, जो उसमें क्लियर कट है, क्लियर कट संदेश हो रहा है। जी बोले पांडे जी बोलिए। देखिए पाकिस्तान जो है ना, उसका जम्मू कश्मीर में जो अभी ऑक्यूपेशन है, उससे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कोई लेना देना नहीं है। आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 4 ही प्रांत है सर। आपको याद होगा जब बेनजीर भुट्टो चुनाव लड़ती थी तो कहते चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। तो वो खुद मानते हैं कि एक आजाद कश्मीर है उनके हिसाब से, जो हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब महादेव की कृपा होगी और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके संविधान के हिसाब से तो 4 ही स्टेट है, और वो 4 बचेंगे कि नहीं वो अलग बात है। मेरा यह कहना है कि वहां के जो लोग हैं, धीरे धीरे उनको पता चल गया है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हो, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हो, कि भाई ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा ठीक चलने वाला है नहीं। वो भारत के कश्मीर का डेवलपमेंट और अपने यहाँ का डेवलपमेंट देख रहे हैं। जिस तरीके से इतनी क्लिंजिंग हुई है वहां, जिस तरीके से बड़े बड़े जनरल आकर के बॉर्डर पे जमीन खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं। और आप देखिए कि मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने ये जो सीज फायर वायलेशन, ये होना सब बंद कर दिया। वो पाकिस्तानियों को पता चल गया है। देखिए वो क्या करे, वो गधा बेचे या कुछ और एक्सपोर्ट करे या वो भारत से लड़े। पेट्रोल तक तो, जेट फ्यूल नहीं है उनके पास जी। वो खुद एक दिन, हो सकता है मैं महादेव से प्रार्थना, सर टैंक्स और आर्टिलरी के लिए फ्यूल नहीं। मैं कह रहा हूं मैं भगवान से महादेव से प्रार्थना करूंगा, आज सोमवार भी है जी, कि आप उनको कहिए कि वो खुद ही आकर के कह दे कि भाई ले लो, ये छोड़ो, काहे लड़ाई करना है। संकेत तो वही कुछ हो दिख रहा है पांडे जी। मगर एक चीज मैं पूछूं आपको, ये 41 जितने FIR आप प्रियंका गांधी पे फाइल कर रहे हो मध्य प्रदेश में, ये सिर्फ कहने के लिए कि 50% कमीशन है, 40% कमीशन में कर्नाटक आप लोग हार गए बीजेपी, और यहां पर 50% कमीशन का आरोप है आप पर। और कमलनाथ, प्रियंका गांधी, कांग्रेस सब एकदम खड़े हैं, बोले वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ, ये वी स्टैंड बाय आवर स्टैंड। तो ये कुछ गलत नहीं लगा आपको, एंटी डेमोक्रेटिक? नंबियार साहब, ये बहुत सीरियस विषय आपने उठा दिया। देखिए विषय ये है कि अगर उन्होंने क्या कहा है, वो जेल जाएंगे इसमें। जिस तरह से उनका भाई कन्विक्टेड हुआ है इस केस में, वो भी कन्विक्ट होंगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने एक फेक अखबार की कटिंग लगा करके ये आरोप लगाया। अगर वो खुद आरोप लगाती, दोनों दो बातें हैं। तो मैं आज जब आपका शो आने वाला था तो देखिए मैंने ये रखा, और मैं आपको 369 का जो उन पर आरोप है जी, और वो आप अगर देखेंगे तो ये क्या कहता है,
368 का 369 मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया है, और उनकी हालत इसमें ये वही होगी जो हालत इनकी हुई। 468 फॉर्जरी है और 469 है फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने एक फर्जरी किया है, उन्होंने नकली एक बनाया और कहा कि इन्होंने किया और उसको उन्होंने प्रमोट किया। फर्जरी उन्होंने जो किया है कि मैं एक कटिंग बना लूं एक अखबार की और उसमें लिखूं कि नामबियार साहब ने यह किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की फेक एक न्यूज बना लूं, नामबियार साहब तो चोर है, और फिर मैं उसको चला दूं। आप इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करिए, यह लीगल विषय है जी। मेरा क्या कहना है, पॉलिटिक्स में आप आरोप लगा सकते थे, हम जनता के बीच में आते जवाब देते। आपने क्या कहा कि 100 अखबार में यह बात छपी है कि ये 50% कमीशन की सजा, दोनों दो बातें हैं। आप तो बोलते रहिए, आप तो बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, रफाल के बारे में बोला, देश की जनता ने उनको कहा नहीं ये पप्पू को छोड़ो, इनको और सीट देंगे हम। आप जाके बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो कहा कि क्या ये दोनों दो बातें हैं, तो मैंने जस्ट आपको डिस्टिंग्विश किया कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो किया है ना, यह अक्षम्य अपराध है। उन्होंने अखबार, या तो बताएं किस अखबार में वो छपा था। नामबियार साहब आप तो काफी सीनियर आदमी, आप भी मुझे बताइए, राजीव जी की टीम पता करे कि किस अखबार में छपा था वो। कोई अखबार में नहीं छपा था, उन्होंने अखबार की एक कटिंग बनाई और उसलिए उनके ऊपर 469 लगा है। 468 फर्जरी से अगला जो सेक्शन है कि हार्म करने के लिए आपने फर्जरी की। तो मेरा यह कहना है कि इस प्रकार का घटिया स्तर केवल कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। Sir, over here, because you've talked legally, a very small question, chalte, because we have talked about a subject which is very dear to all our hearts. Very frankly speaking, partition के ऊपर मुझे बहुत मजा आया इसके ऊपर बात करके, मजा गया है। मतलब इसके ऊपर तो दसियों दिन बात हो सकती है। अभी तक पूरी भड़ास नहीं निकली है सर कि क्या किया गया उस वक्त, क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सर ये बताएं, आदरणीय सामान्य हमारे बड़े परम मित्र नवाब मलिक साहब, उनको बेल मिल गया सर। He is called medical bail. He has been told specifically not to speak to the media, etc., etc. लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है वो ये है कि नवाब मलिक साहब will soon be appointed president of the Mumbai unit of the NCP, अजीत दादा पवार। अजीत दादा पवार साहब उसको अपने NCP के मुंबई यूनिट का प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाले हैं। सर इसको लेकर के आगे देवेंद्र फडणवीस जी की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, सबसे पहले ये तो इफ्स एंड बट्स वाला है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है। उनको मेडिकल बेल मिला है और जो मुझे लग रहा है कि ये न्यूज केवल न्यूज तक है। बिकॉज बोथ हैव वेलकम। सुप्रिया सूले हैज सेड सत्यमेव जयते, जितेंद्र अवार्ड साहब हैज आल्सो सेड सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते यहाँ पे कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको मेरी समझ के बाहर है। मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिला है तो सत्यमेव जयते हो गया वो। हाँ नहीं, ये बेल पे ही सत्यमेव जयते हैं, फाइनली जेल जाते हैं, ये बेल पे ही इनको सत्यमेव जयते। मतलब शर्म की भी एक सीमा है। दूसरी बात है कि सुप्रिया सूले जी और जितेंद्र अवार्ड जी उनको बनाए, उनको बधाई हो, वैसे ही लोगों को बनाए, क्योंकि वो तो पार्टी में नहीं है अभी। अजीत दादा पवार जी के पास पार्टी है, अब उनकी अपनी पार्टी के बीच में। देखिए, एक तो एनसीपी के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। क्या बात चल रही है आपने देखा होगा। अभी मेरा कहना है अभी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी, इनको सोचना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। लेकिन अजीत दादा पवार ने भी स्वागत किया है सर। नहीं ठीक है, अजीत दादा पवार देखिए वो साथ में उन्होंने काम किया है एज के कारण से, लेकिन ये तो क्लियर है। और पहले विद्रोह में नवाब भाई ने साथ दिया था अजीत पवार जी का जो पहले रिबेलियन था। देखिए, मेरा मानना है, आप मुझसे अगर एनसीपी के बारे में पूछे, जो मेरी समझ है, मैं एज ए पार्टी स्पोक्सपर्सन इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं, कि एनसीपी दो भागों में विभक्त है। एक जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दूसरे में कुछ लोग जिसमें आपने देखा होगा कि ये नवाब मलिक और ये जो आपने अभी जितेंद्र अवार्ड का नाम लिया, ये सब लोग जो हैं वो अलग तरीके के लोग हैं। ये अलग अपना राज चलाएंगे। लेकिन जो एनसीपी का जो रैंक एंड फाइल है वो कंप्लीटली देश में जो है वो आज मोदी जी के समर्थन में है, क्योंकि पूरे सबको पता है कि देश में किस प्रकार का वातावरण है, किस तरीके का डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है। And if Mr. Nawab Malik comes into the Ajit Dada Pawar faction, sir, then what happens?
एक बात मैं राजीव जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जी ये किसी भी व्यक्ति को ये बात पता होना चाहिए, कोई केस बंद नहीं होगा, कोई केस बंद नहीं हुआ है। आपको कई बार लोगों को लगता है कि हम चले जाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पीडीपी करके एक पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस में थी, और सबने कहा कि भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। क्या हुआ? पीडीपी के साथ अलायंस टूटा, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे आइडियोलॉजिकल बड़ा विषय था वो काम कंप्लीट हो गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। डे टू डे हियरिंग मैं सुन रहा हूं, मेरे उसमें पहला पिटीशन मेरा भी है वेस्ट पाक रिफ्यूजी का। उस जजमेंट पर भी हम लोग एक दिन केवल जजमेंट पे अलग से प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा देश में। केशवानंद भारती जजमेंट के बाद सबसे बड़ा जजमेंट होगा, या राम मंदिर के बाद सबसे बड़ा जजमेंट। तो मेरा ये कहना है कि किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार में जो भ्रष्ट है, करप्ट है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। So even Mr. Nawab Malik will have to face consequences. जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी है, आपको लगता होगा, आप देख लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के, क्योंकि देख लीजिए, जान लीजिए, आपकी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, साथ नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, वो तो आप बताइए ना, कौन से केसेस में क्लोजर हो गया है, कौन से केसेस में नहीं, फाइल क्लोज किसी में नहीं हुई। तो समय है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ईडी का जो कार्रवाई है, किसी में अटैचमेंट लिफ्ट हुआ है क्या? नहीं। पीएमएलए में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोगों की संपत्तियां अटैच्ड है। एक केस में अटैचमेंट लिफ्ट हुआ है क्या? एक केस की बात अभी तक तो मैंने नहीं देखा। पूरे देश में ईडी ने कम से कम 1,10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी को अटैच किया है। जी, किया। इसमें 150 करोड़ लालू यादव के लड़के का भी है, वो तेजस्वी का। तो ये आप जान लीजिए कि देखिए, राजनीतिक कलाबाजी जो जिसको जो करना हो, लेकिन मोदी जी, देश का हर एक व्यक्ति मोदी जी में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि करप्शन और जो क्रिमिनलाइजेशन एज वेल एज जो ये 3 एक्ट भी आप देख रहे हैं, और जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, उसके खिलाफ जोरदार प्रहार चलता रहेगा, और कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज करके इसको आप रोक नहीं सकते। ऐसा मेरी समझ। राजीव पांडे जी, थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। वी ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू व्हेन वी टॉक टू यू। आपसे जब भी बातचीत होती है, कोई ना कोई नई जानकारी ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you so much, sir. Thank you.